Hello everyone, I Dr. Nilima Goswami. Today's topic is gases. Now, the state of matter, there are three state of matter. Number one is solid, liquid and gases. Previously we discussed about the solid, liquids. Now we will discuss about the gases. In last class, we will discuss about the phase rule. Phase rule for one component system and phase rule for two component system. Now, uh, today's topic is gas. Uh, Simple definition of gas is they are compressible fluids and there is no definite shape and volume. No definite shape and volume. So, ideal properties of gases are कि हम किन उनको कह सकते हैं कि these are the gases. So what are the ideal properties of gases? Especially which differs gases from solid and liquid. तो पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है कि गैस assume that कि उसकी कोई शेप जो भी कंटेनर है गैस उस शेप और उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है सो अ सैंपल ऑफ गैस एज्यूम्स बोथ द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर एंड गैसेस आर कंप्रेसिबल तो दीज आर द प्रॉपर्टीज फर्स्ट कि वो जो भी कंटेनर है उस कंटेनर का वॉल्यूम और शेप ऑक्यूपाई कर ले हम उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम और शेप एज्यूम करते हैं देन सेकेंड वन इज दैट शुड बी कंप्रेसिबल that should be compressible and third one is the densities of gases are much smaller than those of liquid and solids are highly variable depending on temperature and pressure तो densities जो है वो वेरिएट करती हैं उसकी highly dependable on temperature and pressure then gases fourth property is gases form homogeneous mixture with one another in any proportion okay so these are the properties of gases अब हम बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गैसेस हैं ये सब हैं तो डिफरेंट गैस लॉज हैं तो द गैस लॉज कौन कौन से गैस लॉज हैं ये आप लोग 10th और 12th में पहले पढ़ चुके हो तो एज पर इट्स बिहेवियर गैसेस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये गैस लॉज हम फाइंड करते हैं पहला है हमारा बॉयल्स लॉ Boyle's law. So what is Boyle's law? This law that the pressure of a fixed amount of a gas at a constant temperature is inversely proportional to the volume of the gas. तो हमारा Boyle's law हो गया है P is inversely proportional to the pressure और P1 V1 is equal to P2 V2. तो यहाँ पे P जो है वो हमारा प्रेशर है V इज द वॉल्यूम तो एयर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर तो ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है तो ये हमारा हो गया है बॉयल्स लॉ देन अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स लॉ की तो गैस लॉस में हमने पहले सबसे पहले बात की है हमने बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ B is directly proportional to 1 by P. P1 V1 is equal to P2 V2 at constant temperature. यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नेक्स्ट Charles law. Next is Charles law. So this law states that the volume of gas maintained at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature. तो ये हो गया हमारा V is directly proportional to T और V1
T1 इज इक्वल टू V2 T2 और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। इसके बाद थर्ड लॉ है हमारा ये लुसेक लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट, और ये जो ये लुसेक लॉ है दैट इज अ स्पेशल केस फॉर आइडियल गैस लॉ। दिस लॉ only applies to ideal gases held at the constant volume, only the pressure and temperature to change। तो इस ये हो गया है P1 T1 is equal to P2 T2। ओके, तो अब यहाँ पे P1 T1 हो गया हमारे प्रेशर एंड T इज द टेम्परेचर। T यहाँ पे जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मैं इसको 1 वाला जो है दैट 1 इज इनिशियल एंड 2 इज फाइनल टेम्परेचर। तो इन केस ऑफ P1 दैट इज द इनिशियल प्रेशर, दैट इज द फाइनल प्रेशर, T1 is initial temperature and T2 is the final absolute temperature। तो ये हो गया हमारे पास 3 लॉ आ गए हैं अभी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड ये-लुसेक लॉ। देन एक टर्म और लेते हैं इन केस ऑफ गैसेस, वो है हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। इन एवोगैड्रोस लॉ that state the volume of a sample of gas is directly proportional to the number of moles of the sample at constant temperature and pressure। So that means कि volume is directly proportional to n number of moles at constant temperature and pressure। तो आपको ये हो गया हमारा V1 N1 is equal to V2 N2। ये कब है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये हो गए हमारे पास 4 गैस लॉ आ गए हैं। अब इन गैस लॉ के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो सकती है, कि जो प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं तो सारे लॉज को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा बॉयल्स लॉ ये था, चार्ल्स लॉ ये था, और ये अभी हमारा इन केस ऑफ हम बोल रहे थे कि आइडियल गैस के लिए होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं एवोगैड्रो। तो अगर मैं तीनों इक्वेशन को देखूं, तीनों इक्वेशन कौन सी थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं सारी इक्वेशन को कंबाइन करूं तो ये मेरा कंबाइंड इक्वेशन आएगी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/T और V इज इक्वल टू that R is a constant into NT/P। और अगर मैं इसको और कंबाइन करूं तो PV is equal to nRT, where that R is the gas constant, ideal gas constant। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है PV is equal to nRT। तो ये है इक्वेशन दैट इज फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो अब हम हमारे पास आती है कि अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ गई है, तो अब हम बात करते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या हो सकती है, दैट एन आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल सैंपल ऑफ अ गैस whose pressure, volume, temperature, behavior is predicted accurately by an ideal gas equation। मतलब उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है वो है R। तो ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा। तो द गैस कांस्टेंट which is denoted by capital R is proportionally constant and its value and its unit depend on the units of P and V are expressed। So that is known as ideal gas।
So ideal gas is totally hypothetical gas, and its behavior is predicted accurately with the help of pressure, volume and temperature. तो ये हो गई हमारे, पहले हमने बात की कि व्हाट आर द गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फिर गैस लॉस में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और एक आइडियल ये है आइडियल गैस के लिए गेलुसेक लॉ। और अगर मैं ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को तीनों को कंबाइन करें तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आती है जो है हमारी PV इज इक्वल टू nRT। देन अब हम बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। Kinetic molecular theory of gases. What is the kinetic molecular theory of gases? So this theory is based on assumptions. So first is gases consist of a large number of small molecules in constant random motion. जैसे मैंने अभी एक बीकर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, तो ये एक ब्राउनियन मोशन यानी zigzag मोशन में ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, और ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स। तो ये दे आर इन रैंडम मोशन। एंड सेकंड theory is volume of individual molecules negligible compared to the volume of container. Then third one is due to the random motion particles collide with wall and pressure is exerted by the gas। कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये आपस में इनका जो कोलाइड जो होता है, उस कोलाइड की वजह से इन वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो हम बोलते हैं कि वो प्रेशर गैस के प्रेशर की तरह हम उसको एक मानते हैं कि ये हमारे गैस का प्रेशर है। तो वो प्रेशर हमारा कहाँ से आ रहा है कि जब ये पार्टिकल्स आपस में मूव कर रहे हैं और मूव करने के बाद जब ये वॉल से टकराते हैं, तो दैट जो बम्बार्डमेंट है या दैट कोलिजन इज डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। एंड नेक्स्ट थियरी इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब मीन्स की पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो अगर उनके बीच में फोर्स नहीं है दो पार्टिकल्स बीच में, इसीलिए उनके बीच में इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। जैसे सॉलिड के बीच में बिल्कुल भी जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो इसी की बेसिस पर हम ये बोल रहे हैं कि उनके बीच में जो फोर्सेस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। देन the next is the last assumption is the average kinetic energy of gas particle is directly proportional to the Kelvin temperature of gases. So Kelvin temperature of gases, that means that is denoted by capital K. तो ये था हमारा gases के बारे में कि what are the gases, what are the ideal gases and what is the kinetic molecular theory of gases. Then आता है liquefaction of gases. So liquefaction of, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन हम लोग दोबारा एक बार बताते हैं व्हाट इज द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। व्हेन द गैसेस इज कूल्ड इट लूजेस पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, so the speed of molecules is decreases. So if the pressure is applied to the gas, the molecules are introduced into the sphere due to van der Waals forces and switch to liquid state. So because of these forces, liquids are considerably denser than gases and occupy the definite volume. So the transition from one gas to the another liquid. So transition from one gas to the another liquid. So the liquid or gas to liquid and liquid to solid depend on the टेम्परेचर। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, बट ऑल्सो ऑन द प्रेशर टू मेक द सब्सटेंस ऑफ, मतलब डिपेंड करता है, मतलब मेन हम बोल रहे हैं कि दैट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, लेकिन कुछ के केसेस में दैट इज बेस्ड ऑन प्रेशर ऑल्सो। सो इफ द प्रेशर इज हाई एनफ, अ वैल्यू इज रीच्ड अबव which is impossible to liquefy a gas whatever pressure is applied. Okay, तो अगर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें, लेकिन अगर ये गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो दैट टेम्परेचर अबव विच द लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर। ठीक है, वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर।
that temperature is known as critical temperature, and the pressure required to bring out that gas into liquefaction at that particular temperature, at that particular critical temperature, is known as critical pressure. So the pressure applied to bring about liquefaction of gases at a particular temperature is called critical pressure. So the gases is cooled to its critical temperature. अगर हम उस गैस को critical temperature तक cool करते हैं, so it takes pressure to liquefy it. According to this principle, all gases have to be liquefied. Okay, so this is known as liquefaction of gases. तो ये हमारा हो गया है about gases. तो अब मैंने आज हमने gases किया है. तो ये जो gases है और एक liquefaction है, और हम इसको पर्टिकुलर प्रेशर या टेम्परेचर पे किसी कंटेनर में पैक कर देते हैं, और पैक करने के बाद जब हम उस वॉल्व को रिलीज करते हैं तो वो हमें स्प्रे की फॉर्म में, या जैसे घर पे हम लोग यूज करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो गैसेस जो हैं उसको हमने एक पर्टिकुलर प्रेशर पे लिक्विफाई फॉर्म में रखा हुआ है, और जैसे हम उसको वॉल्व ओपन करते हैं तो वो वॉल्व से गैस की फॉर्म में आता है, और फ्लेम अगर हमें मिल जाता है तो वो हमारी गैस जो है, मतलब हमें फ्लेम मिलता है, तो दैट इज नोन एज एलपीजी। तो यहाँ पे हमने उसको लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, और उसका वेट भी आ रहा है क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं परफ्यूम्स की, और जो हम लोग इनहेलर्स यूज करते हैं, तो इनहेलर्स में हमारे जो मेडिकमेंट है, मेडिकमेंट अगर गैस नहीं है लेकिन मुझे उसको वेपर्स फॉर्म में देना है, तो मैं उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकती, लेकिन हम क्या करेंगे, उसके साथ किसी गैस को या किसी प्रोपेलेंट को मिक्स करते हैं जो उसके साथ सॉल्युबल हो जाता है, और जैसे ही हम उसको कंटेनर में पैक करते हैं और उसका वॉल्व ओपन करते हैं तो उसके साथ हमारा मेडिकमेंट भी बाहर आता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स, तो उनको हम बोलते हैं एरोजोल्स। तो ये एरोजोल्स क्या हैं और कैसे हम उसको कोरिलेट करेंगे, दैट शुड बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो गुड डे. In next class we will continue about the pharmaceutical